Hi everybody, my name is Mohammed Tufail. I'm assistant professor at University of Sindlar campus Badin, and presently I'm talking you from the platform of the Paragon Academy Badin. I welcome you all in this free online English language teaching classes. Today we are going to conduct a 10th session of this free online English language teaching class, and I'm also thankful for your cooperation and interest, especially the time what you give to your studies, your learning. That's very important, and I think it is a time when we need to be serious and we take our studies serious, because the calamity what we are facing, it will not be over within days, but it will take time. To be honest, whatever the circumstances are going on, we may live in this lockdown situation for a couple of months. For that, this halt in your studies would cost you dearly. Therefore, on your part, it is very necessary that you should take your studies serious, whatever the means and sources and the methods you have. We teachers are also trying to contribute something for your betterment, and here whatever we are doing, that is very open and very clear, and we want to serve you, to help you, so that your studies may not suffer. To the extent we can contribute for your betterment and for your learning. So thank you very much. Welcome you all, Harish and all other students. Thank you. Let us proceed further in this 10th session. First, I would recap this 10th session. The previous classes I would connect it, then we would move forward. In previous classes, पिछली जो classes थी, we discussed that language is a source of communication. ये एक राब्ते का ज़रिया है. Then we discussed that we need 4 skills to learn languages, and among these 4 skills we have a listening, speaking, reading, writing. And in this listening, then we discussed that we have 2 skills are input, like listening is input and reading is input, and 2 skills are output, that's speaking and writing. So when you enhance or increase your input, जब आप अपने input को बढ़ा दें, your output automatically increases, तो फिर आपकी output जो है ना वो increase होती है. So that is the equations of learning language, because this is not L1, अंग्रेजी L1 नहीं है, you are learning it as L2. L2 से मुराद है language 2. So when we are dealing with any language as a language 2, that time is very necessary that we should continue it like the sense. We take all these 4 skills at practice. Otherwise, what happens that this output suffers. So generally, in other languages, L1 we only learn reading and writing at schools, because there is no issue of listening and speaking. You already learn at home, but English is not your L1, is L2. Therefore, it's very necessary to focus all these 4 skills. Then we move forward that after these skills, then we were talking about essentials. What should be the essentials? So I mentioned that basically you need to focus on 3 things to learn language. 3 चीज़ों पे आप focus करें. Your semantics means your vocabulary is very important. Okay, the way you improve or enhance your semantics is very important. आप अपनी vocab को enhance करें, और vocab वो enhance होगी जो आप use करते हैं. बाकी खाली word और याद करना फिर आप वो भूल जाएंगे. Don't go to that practices. That will not benefit you. आपने बहुत से वर्ड्स स्कूल्स में पढ़े हैं, अपने साइंस की बुक्स में पढ़े हैं,
लेकिन आप उसमें से कितने वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो जो वर्ड्स वो आपके पास बचेंगे जो आप यूज़ करते हो, बाकी जिनको आप यूज़ नहीं करते वो वर्ड्स आपके पास नहीं रहेंगे। सो वन थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ योर वर्किंग वोकैबुलरी, नंबर 1। ओके, नंबर 2, द फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स जो हैं, वी मस्ट लर्न द फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड, जो बार बार अंग्रेजी में या ये यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। इफ़ यू विल गो टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इन इट्स बैक साइड, उसी के बैक पेपर्स के ऊपर उन्होंने भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स की लिस्ट दी है, या एक मास्टर वोकैबुलरी। सो you can also join to this method and you could continue it. In that sense, वो जो frequently used words की list है, this would also help you to improve your skill, and that is again useful for your semantics development. So you need to enhance your semantics. Then phonetics is equally important. The way you pronounce, that's very important. तो आप उनको किस तरह pronounce करें, that's very important. Then third thing comes in the domain of semantics that we call grammar. So my dear students, क्योंकि ये मैंने बताया था कि ये जो कोर्स मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं ज़्यादा उन स्टूडेंट्स के लिए फोकस कर रहा हूँ कि जो स्कूल लेवल पे या कुछ कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स हैं जो अकेले नहीं पढ़ सकते। देखिए, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स में फिर भी इतनी अप्रोच होती है कि वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा जो हमारा नुकसान हो रहा है वो उन बच्चों का हो रहा है जो स्कूल्स या कॉलेजेस में बैठे हैं और वो जो टीचर्स से ही कनेक्ट होकर पढ़ सकते हैं, उन स्टूडेंट्स का इस टाइम जो है ना वो बड़ा चैलेंज है हमारे पास पूरे मुल्क के अंदर। इन स्टूडेंट्स को कैसे इफेक्टिवली हम इंगेज कर जाएं टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इसलिए मैं भी ये जो फोकस कर रहा हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से भी ज़्यादा फोकस हूँ ताकि हम उनको टारगेट करके इस कोर्स को ले चलें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम इंगेज कर सकें। तो फॉर दैट रीज़न you need a 3 things. Okay, आप अपनी vocab semantics को बढ़ाएं. Number 2, phonetics, the way you pronounce your words. And number 3, what we call is syntax, grammar. फिर आप उन ग्रामर को जो है ना वो साथ ले चले। तो इस कोर्स के दौरान आप समझते हैं कि वी आर टेकिंग ऑल दीज 3 थिंग्स टुगेदर। हम डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट वीडियोस जो जब देखते हैं तो उन्हीं वीडियोस को एक मरतबा हम सिमेंटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि उसमें वर्ड्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, उसका मतलब क्या है और वो वर्ड्स वहाँ पे क्या फंक्शन कर रहे हैं और किस तरह वो लैंग्वेज के अंदर एक कलेक्टिव मीनिंग डेवलप कर रहे हैं। फिर उसी वीडियो को हम जो है वो फोनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिस तरह कल हमने उस लड़की के वीडियो को देखा था कि वो किस तरीके से वो साउंड्स को प्रोनाउंस कर रही है। तो एक मरतबा हम उसी क्लिप को सिमेंटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसी क्लिप को दूसरी मरतबा, जब मैं सिमेंटिक्स कहता हूँ तो मेरा मतलब है वर्ड्स मीनिंग, ठीक, और जब मैं फोनेटिक्स कहता हूँ तो मेरा मतलब है कि हम उनका तलफ़ुज़ कैसे करें। और जब मैं सेंटेक्स की बात करता हूँ तो सेंटेक्स से मेरी मुराद है कि हम ग्रामर में उस चीज़ों का ख्याल रखें जिससे हमारी लैंग्वेज जो है वो बेहतर तरीके से जो है ना वो काम कर सके। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर योर लर्निंग। ओके, सो लेट अस मूव टुगेदर इन दिस 10th session. I welcome you all. And now this was the simple recap or connectivity of this class 10 sessions with the previous session, and we would move forward to discuss this class. Okay, please. This was the class. Okay, we started that language is a source of communications, and we have these 4 skills, and after these 4 skills we talked about L1 and L2, and we talked about that what are essentials. In essentials we talked about semantics. Okay, semantics is vocabulary, the words and phrases, the meaning. Then phonetics is very equally important, the way you pronounce your words. Okay, and last comes syntax. Okay, syntax helps you to understand the grammatical composition, order and sequence of a sentence, which gives meaning to that. Okay, then we talked about this, how these vocal organs they produce this sound. Okay, and then when we come to structure of language, in this structure we cover
that language is a combination. So, okay, what is the scientific structures language develops? Okay, letters. Okay, we put letters together to make syllable, and syllable make sound while that verse. So, syllable are phoneme. Basically, in English, they are a product of a consonant and a vowel. When we put a consonant and a vowel together, we make a phoneme. phoneme क्या होता है? बेसिक एक बुनियादी आवाज़. देखिए, जब हम कहते हैं ना फादर, तो इसमें दो आवाज़ें हैं ना, फा, ये एक आवाज़ है, जिससे वो फ़नीम. इस फ़नीम को हम मिलाते हैं तो फिर वर्ड्स बनते हैं. और तो ये जो सिलेबल बनते हैं, साउंड जो बनते हैं, इन साउंड्स को जो अंग्रेज़ी के अंदर जो साउंड्स बनते हैं, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट एंड अ वाइल. देन यू मूव फॉरवर्ड. Then you come to after these syllable, they make a words, and words have a meaning. देखिए, syllable की कोई meaning नहीं होती, phoneme की कोई meaning नहीं है, fa की कोई meaning नहीं है, the की कोई meaning नहीं है. But when fa and the they are put together, they make father, and that gives you the man just a sense of meaning like that. So father. एंड इन दिस वे वर्ड्स जब मिलते हैं तो फिर सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस के पास एक सेंस होता है. सेंटेंस जब मिलते हैं तो एक पैराग्राफ बनता है. पैराग्राफ के बाद आपके पास एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है. सेंटेंस में एक थॉट होता है. थॉट जब मिलते हैं तो आइडिया बनते हैं. थॉट क्या होते हैं? छोटे छोटे जो है ना, वो एक ही नुक्ते निगाह से जो ना थॉट बनते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप अल्लामा इकबाल की पे ऐसे लिख रहे थे तो उसका शायरी एक आइडिया है. अब इस पे छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होंगे कि इकबाल ने बांगे दरा लिखी, या इकबाल ने जो है ना वो शिकवा लिखी, और शिकवा पे जब उस बेचारे पे ज़ोर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो उसने जवाब शिकवा लिखी. तो अब ये छोटे छोटे थॉट हैं, लेकिन ये छोटे छोटे थॉट मिलकर एक किस आइडिया को सपोर्ट करें? इकबाल की पोइट्री को. लेकिन यहाँ पे इकबाल की पॉलिटिक्स का डिस्कशन नहीं हो रहा. सो पैराग्राफ एक आइडिया को समाये रखता है. देन वी मूव फॉरवर्ड टू एसे, एंड एसे टॉक्स अबाउट वन टॉपिक. ओके, तो इसी एतबार से हमने वर्ड्स को क्या किया था? वी क्लासीफाई दीज वर्ड्स. ओके, क्लासीफाई दीज वर्ड्स इनटू स्मॉल पोर्शंस. ओके, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इस वर्ड्स को क्लासीफाई किया था. हमने कहा था कि नाउन चीज़ों पे नाम रखता है. अब देखिए, क्यों हम यहाँ पे, एक पुराना ज़माना था, जिस तरह मैंने आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ट्रेडिशनल ग्रामर्स जो हम पढ़ाते थे, और आजकल जो फंक्शनल ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रामर का जो है वो लैंग्वेज के अंदर मीनिंग पे फोकस करता है कि ये लैंग्वेज के अंदर क्या कर रहे हैं, किस तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं. पहले हम क्या करते थे? हम सिर्फ इनको अकेला डेफिनेशंस याद करते थे, और कभी भी लैंग्वेज के अंदर इनको नहीं देखते थे कि यहाँ पे हम एस डालेंगे तो क्या होगा, ये जो ना अगर हटाएंगे तो क्या होगा. लेकिन जब तक आप कहते कि आई परचेज अ फैन या आई परचेज फैंस, अब फैन या फैंस, यहाँ पर एस डालने और हटाने से आपकी मीनिंग में किस तरह फ़र्क आ रहा है, तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है. इसलिए फंक्शनल ग्रामर ये नहीं डिस्कस करता है कि इनके आप बैठकर जो ना जस्ट उनके वो याद करें, जिस तरह ग्रामर के अंदर वो उनके गिरदान वगैरह हम पढ़ा करते थे ट्रेडिशनल मेथड के अंदर. हम इनके फंक्शंस की तरफ जा रहे हैं, और फंक्शंस में आस्ता आस्ता हम ग्रामर को और सिंपल करते जा रहे हैं. इसको पेचीदा करने से मुराद से हो सकता है आगे चल के टेंसेस भी बहुत जो है ना वो मुख्तसर करके जो कंसेप्ट्स हैं उसकी तरफ जो है ना वो लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जा रहा है. तो दिस वे अब अगर इनको हम डिस्कस करें वर्ड क्लासेस के अंदर, हम क्या करें? हमने वर्ड्स की क्लासेस बना डाली. अब पिछले स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ तक तो हम आ गए. अब वर्ड के बाद हम यहाँ से स्विच हो रहे हैं, हम जा रहे हैं क्लासेस में. इन वर्ड्स को हम छोटी छोटी क्लासेस में कन्वर्ट करें. वी आर सिंपली गोइंग टू कन्वर्ट दीज क्लासेस इनटू दिस, वी आर गोइंग टू क्लासीफाई दीज वर्ड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, जिसको हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा करते थे. सो व्हाट इज, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नाउन का काम है ना नाम रखना, और नाउन हमेशा चीज़ों पे नाम रखता है ताकि उनकी पहचान हो. प्रोनाउन उसके मुतबादिल लाता है ताकि नाउन को बार बार रिपीट न किया जाए. और एडजेक्टिव आपको बताता है कि नाउन प्रोनाउन है कैसा. नाउन प्रोनाउन के बारे में जितनी भी क्वालिटीज़, उसकी जिसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ, उसका नंबर, उसकी तादाद, बहरहाल उसके बारे में जो मालूमात दे नाउन प्रोनाउन के बारे में, वो एडजेक्टिव कहलाता है. एडजेक्टिव का काम है कि इनके बारे में मालूमात देना. दैट क्वालिफाइज टू ए नाउन एंड प्रोनाउन. ओके, एंड इट टेल्स अबाउट देम कि वो क्या हैं.
बुक है तो कैसा बुक है? न्यू बुक, न्यू इज एडजेक्टिव. ओल्ड बुक, ओल्ड इज एडजेक्टिव. एक्सपेंसिव बुक, एक्सपेंसिव एडजेक्टिव. महंगी, महंगी किताब. चीप बुक, ओके, चीप, ओके. वंडरफुल, सॉरी, इंफॉर्मेटिव बुक, इंफॉर्मेटिव बुक. इंफॉर्मेटिव इज एडजेक्टिव जो बुक के बारे में बता रहा है. तो नाउन के बारे में जो मालूमात देता है वो एडजेक्टिव कहलाता है. Class, okay, informative class. Informative is adjective, class is noun, okay. Or you say that decisive person. Decisive is adjective and a person is noun. I'm happy. Happy is adjective. This happy is going to talk about I. I is a pronoun. I'm happy. When I say I'm happy means I. I is a pronoun and then happy is going to say something about I. तो I कैसा है? Pronoun कैसा है? वो happy है. She is sick. तो यहाँ पे सिक जो है शी के बारे में बता रहा है कि शी कैसी है. शी इज सिक, ओके. आई एम रेडी. रेडी इज एडजेक्टिव, सिक इज एडजेक्टिव, हैप्पी इज एडजेक्टिव. सो दिस वे एडजेक्टिव इनके बारे में मालूमात देता है और वर्ब आपको बताता है कि वो काम क्या करता है. कि आई टीच, दे प्ले, वी वेट, ओके. वेट, टीच, प्ले, रीड, राइट, कम, ओके. दैट्स वर्ब, ओके. वर्ब आपको बताते हैं व्हाट वर्क इज गोइंग ऑन, दैट व्हाट एवर द वर्क इज गोइंग ऑन, दैट्स वर्ब. एंड देन एडवर्ब, ओके. Adverb talks about something about verb, how the verb is being done, how the action is being done. काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है. देखिए इसके नाम से जाहिर है, इसे ऐड प्लस वर्ब. ये वर्ब में ऐड कर रहा है और वर्ब में क्या होता है? वर्ब काम होता है कि शी प्लेस, वो खेलती है. खेलती तो है, कैसे खेलती है? दैट इज़ द जॉब ऑफ एडवर्ब. अली रन्स फास्ट. अली दौड़ता तो है. अब दौड़ना तो वर्ब है. दौड़ तो रहा है, कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है. फास्ट रन के बारे में बता रहे हैं कि अमल जो वर्ब है, रनिंग का जो वर्ब है, जो रनिंग का काम है, वो काम कैसे हो रहा है. ही इज़ ए टीचिंग स्लो. पढ़ा तो रहा है, कैसे पढ़ा रहा है? ही इज़ टीचिंग स्लो. स्लो, स्लो इज़ एडवर्ब, ओके. स्लो बता रहा है कि जो पढ़ाने का काम कैसे हो रहा है. लेकिन मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था कि एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ वर्ब तक महदूद नहीं रहता. एडवर्ब वर्ब जो है ना वर्ब की भी मदद करता है. एडवर्ब एडजेक्टिव की भी मदद करने चला जाता है. एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी मदद करने चला जाता है. और एडवर्ब प्रीपोजिशन की भी मदद करता है और एडवर्ब कंजक्शन की भी मदद करता है. तो हमने ये स्ट्रक्चर में देखना होता है कि ये कहाँ किसकी मदद कर रहा है. तो लैंग्वेज में एडवर्ब का बहुत बड़ी वसी डोमेन है और जब हम एडवर्ब पे आएंगे तो हम इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे, जिस तरह आज हमने नाउन को डिस्कस करना है. देन वी टॉक्ड अबाउट प्रीपोजिशन. ये आपको बताता है कि उस चीज़ की प्लेस पोजिशन क्या है. तो इन, एट, ऑन, ओवर, अपॉन एंड बिसाइड, बिहाइंड, अक्रॉस, इन फ्रंट ऑफ, ओके. दीज आर द प्रीपोजिशंस जिसको हमने डिस्कस करना होता है कि ये किस सेंस में, किस लॉजिक, किस उसूल के तहत इसको लगाना चाहिए. ऑन कब लगता है, एट कब लगता है, ओवर कब लगता है, अपॉन कब लगता है. और फिर प्रीपोजिशन में दूसरा जो डोमेन है वो लॉजिकल, वो फिक्स्ड एंड डेफिनेट प्रीपोजिशन का होता है. देयर आर सम वर्ड्स विच आर फॉलोड बाय सर्टेन प्रीपोजिशंस. कुछ नाउन हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, कुछ वर्ब हैं जिनके बाद एक फिक्स्ड या डेफिनेट प्रीपोजिशंस आते हैं. तो जब आप डिक्शनरी भी खोल कर देखते हैं तो आपको डिक्शनरी भी बता रही होती है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी बता रही होती है कि वहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए. देखिए मिसाल के तौर पे अगर आप इफ़ वी विल गो टू दिस, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसकी एक देख बता दूँ कि हाउ दीज आर फिक्स्ड एंड डेफिनेट वर्ड्स आर फॉलोड बाय certain prepositions, as we say that look at, listen to, knock at, insist on, persist in, okay. So, disappoint. Now look at that. Look. Now see, if you will, that here is this word, okay. Look at somebody or something, okay. So this dictionary is going to show that what preposition should follow the look at. If you will use this Oxford Dictionary, अगर आप ये Oxford Dictionary को यूज़ करेंगे तो ये आपको preposition में बहुत ज़्यादा मदद दे सकती है. जिस तरह पिछले दिन मैंने कहा था कि try is the key to success, okay, not key of success, okay. तो ये जो है ना वो key to success अक्सर है. यहाँ पे देखें ना, key to something, राज, okay. The key to success is preparation. ये देखिए ऑक्सफोर्ड यहाँ पे क्या लिख रही है, the key to success is preparation. यहाँ पे ऑक्सफोर्ड ये नहीं कर रही है, key of success नहीं कह रही, of preparation नहीं लगा रही है, to लगा रही है. Key to success is preparations, okay. So in this way they follow a certain fixed or definite preposition. जिस तरीके से हम कहते हैं look at, listen
look, listen to somebody or something. Okay, look that. Listen to somebody or something. This to is there. So these are fixed and definite prepositions. ये fixed and definite prepositions हैं जिनको हमने लेकर चलना होता है. तो this we will talk about. जब हम preposition के पे आएंगे, we will talk about this preposition as well. So then we will talk about conjunction in one class and introduction in one class and articles in one class. तो ये एक प्रैक्टिस है जिससे हम जो है इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरीके से हाउ डू दे वर्क इन अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. ओके, तो पिछले दिनों हमने ये कुछ सेंटेंसेस को एनालाइज किया था. आई प्ले क्रिकेट फास्ट बट आई प्ले फुटबॉल स्लो. तो इसमें हमने एनालाइज किया था कि आई वर्ब है, प्ले एडजेक्टिव है, क्रिकेट नाउन है, फास्ट एडवर्ब है. पहले सेंटेंस में आई प्ले क्रिकेट फास्ट, तो फास्ट एडवर्ब है जो प्ले वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. बट यहाँ पे कंजक्शन है जो इन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, क्योंकि नाउन चीज़ों पे नाम रखता है, प्रोनाउन मुतबादिल लाता है, एडजेक्टिव बताता है नाउन प्रोनाउन है कैसा, वर्ब बताते हैं काम क्या हो रहा है, एडवर्ब बता रहा है कि वो काम कैसे हो रहा है, प्रीपोजिशन उसकी जगह या प्लेस सिचुएशन को तय कर रहा है, और कंजक्शन उसके दरमियान लिंक पैदा कर रहा है, कनेक्टिविटी जो जॉइंट पैदा कर रहा है, कोहेरेंस पैदा कर रहा है, रिलेटिविटी पैदा कर रहा है, इंटर रिलेटेडनेस पैदा कर रहा है, ताकि उनका इज्तिमाई तौर पे हम उसका मतलब या मफहूम डेवलप कर सकें. तो उसके अंदर जो लिंक है, जो उसके अंदर इंटर कनेक्टिविटी है, तो वो जा पैदा करना कंजक्शन का काम होता है. और जो है ना इंटरजेक्शन तो आपकी सडन फीलिंग्स का इजहार है, और आर्टिकल्स उनको या तो मखसूस करता है या आम करता है. तो यहाँ पे बट जो है ना ये कंजक्शन है, और कंजक्शन हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंजक्शन यूज़ करते हैं, जिस तरह सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं जो दो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो एक हिस्सा दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, तो हम जो है ना सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करते हैं. लेकिन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस वो कंजक्शंस होते हैं जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस के इंडिपेंडेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन कराते हैं. और जो सबऑर्डिनेट जो होते हैं तो वो जो है ना वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस वो होते हैं जिस पे दूसरा हिस्सा अगले हिस्से पे जो है ना किसी एक हिस्से पे जो है ना वो डिपेंड करता है, उससे हटेगा तो वो फिर बेमानी हो जाएगा और अपना मफहूम मतलब खो बैठेगा. तो ये बट कंजक्शन है, और ये देखें ना यहाँ पे बट जो है ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्योंकि इसमें दोनों का सेंटेंस को अगर आप अकेला रखें आई प्ले क्रिकेट फास्ट, ये पूरा अपना सेंस रखेगा. बट से इसको ना जोड़ो तो ये अपना मतलब मफहूम नहीं खोएगा. ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है. आई प्ले फुटबॉल स्लो, मगर जो मैं फुटबॉल खेलता हूँ वो स्लो है. हाँ, दोनों को मिलाओगे तो एक नया सेंस निकलेगा जो कंट्रास्ट बता रहा है दो चीज़ों के दरमियान. लेकिन अगर आप नहीं जोड़ना चाह रहे तो अकेला सेंटेंस आई प्ले क्रिकेट फास्ट जो है वो नहीं अपना मतलब या मफहूम नहीं खोएगा. लेकिन अगर यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ होता, मैं अगर कहता कि बिकॉज ही इज़ सिक, तो अब देखें ये इसका दूसरा पार्ट इसको मिले तो ये बात क्लियर करे. ओके, सो अगर मैं कहूँ कि जाहिद इज़ टीचिंग इन द क्लास बाय सिटिंग ऑन द चेयर, जाहिद इज़ टीचिंग इन द क्लास बाय सिटिंग ऑन द चेयर बिकॉज ही इज़ सिक. अब देखें बिकॉज ही इज़ सिक, ये जो बिकॉज इसमें लिंक जोड़ रहा है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तब है जब पहला सेंटेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है कि जाहिद इज़ टीचिंग इन द क्लास बाय सिटिंग ऑन द चेयर बिकॉज ही इज़ सिक. अब बिकॉज ही इज़ सिक यहाँ पे सबऑर्डिनेशन है, और वो तब अपना मफहूम मतलब रखेगा जब अपने अगले हिस्से के साथ मिलेगा. जब अगले हिस्से से सेंटेंस से इसको हटाओगे ना तो ये फिर बिकॉज के वाला पार्ट जो है वो मतलब नहीं मेंटेन कर पाएगा. अच्छा, अगला हिस्सा अपना मतलब मेंटेन रखेगा कि जाहिद इज़ टीचिंग इन द क्लास बाय सिटिंग ऑन द चेयर, ये पूरा मतलब रखेगा. अगर यहाँ पे इसको छोड़ दें तो ये पूरा मतलब रखेगा. लेकिन वो जो है बिकॉज ही इज़ अ सिक, ये देखें यहाँ पे बेईमानी हो जाएगा कि वो बीमार है, तो क्या मतलब है यहाँ पे बात जो है ना. तो इस तरीके से हमने ये देखना होता है कि कौन से कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं. ये कंजक्शन के चैप्टर पे पहुँचेंगे तो मैं इनको जो है ना वो डिस्कस करूँगा. तो बट फुटबॉल इज स्लो, आई वर्ब प्रोनाउन है, प्ले वर्ब है, और फुटबॉल जो है ना वो नाउन है, स्लो एडवर्ब है, और आई एम अ फास्ट बॉलर, इसमें आई प्रोनाउन है, एम लिंकिंग वर्ब है. मैंने बताया था कि ये लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन वर्ब फॉलो करता है. जिस तरीके से आई एम राइटिंग, अगर यहाँ पे होता है ना आई एम राइटिंग, अब राइटिंग एक्शन वर्ब है,
जब एक्शन वर्ब जो आते हैं तो हम इसको ये फिर हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, उस टाइम ये टेंस की क्लियरिटी के लिए यूज़ होते हैं। और जब ये लिंकिंग वर्ब बनते हैं तो इनके बाद आप देखिएगा कि या तो कोई नाउन आ रहा होगा या एडजेक्टिव आ रहा होगा। अब यहाँ पे बॉलर आ रहा है, आई एम बॉलर, ये बॉलर नाउन है, तो ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। अ जो है ना वो आर्टिकल है। आर्टिकल का मैंने आपको बताया था कि नाउन हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो, तो अगर जब उसको हम आम तौर पे जिक्र करते हैं तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल अ या एन लगाते हैं, और जब उसको मखसूस करते हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। लेकिन आप मुझे एक पेन देते हैं, अगले दिन वो पेन गायब हो जाए तो मैं कहूँगा द पेन यू गेव मी इज़ मिसिंग। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ अ पेन यू गेव मी, मैं कह रहा हूँ द पेन यू गेव मी। ये द क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मैं उस पेन की बात कर रहा हूँ जो आपने मुझे दी थी। आज आपने पेन दी, कल वो मिस हो गई। मैं कह रहा हूँ द पेन यू गेव मी इज़ मिसिंग, द पेन इज़ लाइक दैट। तो ये आर्टिकल्स हैं, ये हमने एनालाइज किया था पिछले क्लास में, और इनको हमने जो ना देखा, दे आर राइटिंग, दे आर वेटिंग फॉर मी बट आई एम वेरी बिजी। दे प्रोनाउन आर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज़ हो रहा है। वेटिंग, यहाँ पे देखिए आर के बाद एक्शन वर्ब आ रहा है, ये आर हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग वर्ब है, फॉर प्रेपोजिशन है, मी प्रोनाउन है, बट जो है वो एडजेक्टिव है, सॉरी कंजक्शन है जो इनमें लिंक पैदा कर रहा है। आई फिर प्रोनाउन है, ये जो एम है ये एम लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद देखिए बिजी जो आ रहा है वो एडजेक्टिव है, आई एम वेरी बिजी, और बिजी जो है ना वो एडजेक्टिव है, और वेरी यहाँ पे क्या है, वेरी जो है ना एडवर्ब है। जिस तरह मैंने कहा ना कि एडवर्ब वर्ब की मदद कर सकता है, लेकिन एडवर्ब एडजेक्टिव की भी मदद करता है। अब देखिए मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आई एम बिजी, अब बिजी एडजेक्टिव है, आप बिजी तो हैं मगर कितने बिजी हैं, तो इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए you just use this adverb, okay, and very terms to become adverb very busy। ये दूसरा सेंटेंस था, when I completed my food was it, और हमने इनको एनालाइज किया था, इन सब को हमने एनालाइज किया था। अब हम एक या दो सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, then we will go to further, okay। Now this is your time to analyze this। It was a wonderful day, it was raining slightly and we were traveling at low speed। Please इसको आप एनालाइज करें कि इसमें नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रेपोजिशन कौन सी है, इसकी पहचान बहुत लाजिम है। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन है, उससे आपके लैंग्वेज की जो ना वो एक जो उसकी रियल आपका सेंस है वो पैदा होता है। फिर आपको पता चलने लगता है कि ये लैंग्वेजेस काम कैसे करती हैं और हमें यहाँ पे क्या एडजेक्टिव रखना है, वर्ब रखना है, प्रेपोजिशन रखना है, किस तरीके से इसको कनेक्ट करना है, लाइक दैट। Thank you very much. Your time is up. Now look at if we analyze it. Yes, Zahid, it is pronoun and was a linking verb. Exactly, was is a linking verb. A wonderful day. अब अ जो है ना यहाँ पे ये आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, डे को। डे जो है ना वो नाउन है, ये कॉमन नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है। जब नाउन हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो तो उसके आगे या तो हम
इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं अगर जब उसका हम आम जिक्र करते हैं, लेकिन जब उसको ख़ास करते हैं तो फिर हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल है, वंडरफुल एडजेक्टिव है। वंडरफुल का काम जो है वो एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? हमेशा एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की मदद करता है। अब दिन तो है, डे का मतलब है दिन है, दिन तो है मगर कैसा दिन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वंडरफुल डे। तो डे जो है ना एडजेक्टिव है। इट वॉज रेनिंग स्लाइटली, इट अगेन प्रोनाउन है, और ये जो वाज है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए लग रहा है, जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहें, दिस फाइनाइट वर्ब। एंड इट वाज रेनिंग स्लाइटली, ये हल्का हल्का जो है ना वो बारिश हो रही थी। अब देखें, बारिश होना ये वर्ब है, इट वाज रेनिंग, रेनिंग इज अ वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे बारिश हो रही थी? स्लाइटली। स्लाइटली जो है ना ये एडवर्ब है, बता रहा है कि ये बारिश का अमल कैसे हो रहा है। तो बारिश तो हो रही है लेकिन कैसे हो रही है? स्लाइटली। अब देखिए, जब वर्ब के बारे में जो क्लियरिटी दे रहा है ना वो एडवर्ब है, और ऊपर नाउन को जो क्लियर कर रहा था ना, दिन तो था लेकिन कैसा दिन था? वंडरफुल। तो वंडरफुल एडजेक्टिव था, एंड रेनिंग इज वर्ब, स्लाइटली इज वर्ब, एंड और ये कंजक्शन है। अब ये ऊपर वाले सेंटेंस के लिंक पैदा करें। एंड वी वर ट्रेवलिंग एट लो स्पीड, वी प्रोनाउन, व ये हेल्पिंग वर्ब है, ट्रेवलिंग, अब ट्रेवलिंग वर्ब है। देखिए, जब एक्शन वर्ब आ जाता है तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ये किस टेंस की बात हो रही है? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। वी वर ट्रेवलिंग, हम ट्रैवल कर रहे थे। एट जो है ना वो बेसिकली प्रेपोजिशन है। एंड लव स्पीड, लव एडजेक्टिव है, स्पीड नाउन है। अब स्पीड का जो है ना एक चीज़ का नाम है तो ये नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। लव जो है वो बता रहा है कि किस स्पीड पे, इसको लो ना पड़े। अगर इसको लो कहोगे ना, LAW कहोगे, तो ये फिर बन जाएगा, जो LAW होता है ना उसको हम कहते हैं लो। लो, आई टीच लो, मैं कानून पढ़ाता हूँ। लेकिन जब LOW होता है तो वी प्रोनाउंस इट लव, लव, लव। इस तरीके से मैंने कहा था ना, गो, नाउ, SO, so, LOW, love, at low speed, low speed. So low is adjective and speed is noun. तो इस तरीके से this is being analyzed, and you can just confirm from this that which is noun, which verb, which is adverb, which is preposition. अब ये एक और सेंटेंस है, प्लीज एनालाइज दिस। वी नीड रेगुलर, पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग टीचर्स। दे मस्ट टीच प्रॉपरली एंड दे शुड नॉट यूज corporal punishment. Try to analyze it, find out where's the noun, verb, adjective, etc.
Well, now look at that. We need a regular, punctual, and hardworking teachers. Okay. We is a pronoun. Need is a verb. Need is a verb. जो बता रहा है ये जो ना यहाँ पे verb है regular, punctual, and hardworking teachers. Okay. अब इसमें देखें कि teachers noun है और उनके लिए जो यूज हुए they all are adjectives. Regular is adjective जो रोज आए. Punctual is adjective जो टाइम पे आए. एंड हार्डवर्किंग जो मेहनत कश हों, मेहनत करने वाले हों. नाउ दी 3 आर एडजेक्टिव्स जो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं टीचर को, नाउन को. ज़बरदस्त. ये जो आप रिस्पांस दे रहे हैं इनको अटेम्प्ट करें, ये बहुत ज़बरदस्त हैं आप इस, क्योंकि मैं सबके रिस्पांस काउंट नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जो ये प्रैक्टिस हो रही है ये इंटरैक्टिव सेशन इस तरह होता है. आप अपना जवाब लिखते जाएं. जो आपको लग रहा है कि ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आप ज़बरदस्त जो लिख रहे हैं ये ज़बरदस्त है, आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि मैं सबको यहाँ पे रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली नहीं कर सकता. अगर करूँगा तो फिर हम असल उस टॉपिक से हट जाएंगे. बट देन इट्स वेरी गुड वे. ओके, सो कीप राइटिंग योर रिस्पॉन्स एंड टेक्सटिंग इट. दिस विल हेल्प यू दैट यू आर इन्वॉल्व, योर राइटिंग एंड एटसेट्रा. गुड. सो अब पहले सेंटेंस में हमने वी प्रोनाउन, नीड वर्ब, रेगुलर एडजेक्टिव, पंक्चुअल एडजेक्टिव, एंड कंजक्शन. और ये एंड कंजक्शन है, 3 एडजेक्टिव्स को आपस में लिंक करा है, रेगुलर, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग. और देखें जिस तरीके से 3 नाउन, 3 या 4 नाउन या एडजेक्टिव्स, इनको जब आप कनेक्ट करते हैं तो पहले हम कामा देते जाते हैं, लेकिन आखिर में जो 2 होते हैं वहाँ पे फिर हम एंड डाल देते हैं. यहाँ पे रेगुलर और पंक्चुअल के दरमियान कामा है, लेकिन यहाँ पे फिर हार्ड वर्किंग और पंक्चुअल के दरमियान हमने लास्ट में कंजक्शन रखा होता है, सो एंड रखा है. इसी तरीके से दे अगेन प्रोनाउन, मस्ट, ये मॉडल वर्ब है. मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो एक स्पेशल मकसद के लिए यूज़ होते हैं, उसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं. कैन हम लगाते हैं बतौर मॉडल वर्ब. आप अपना जब पोटेंशियल जाहिर करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आप मॉडल वर्ब कैन लगाते हैं. कि आई कैन टीच, आई कैन प्ले, आई कैन वर्क. मैं एक मॉडल वर्ब है जो 4 पर्पस के लिए यूज़ होता है. मैं को आप परमिशन के लिए यूज़ करते हैं कि मे आई कम इन, कि क्लास में जब आप कहते हैं. अच्छा, इसमें देखें अक्सर आपने एक स्टूडेंट्स को रहने का है, सर मे आई कमीन. ये कमीन क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव मेड दिस कमीन. दिस बेसिकली व्हाट इज कम इन. ओके, मे आई कम इन. सो व्हाट इज दिस कमीन? वेल, तो मैं जिसको आप परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, परमिशन मांगनी हो या परमिशन देनी हो. मांगनी कैसे? मे आई गो, क्या मैं जाऊं. और अगर आपने इजाज़त देनी है तो भी हम मे का सारा लेते हैं, यू मे गो, आप भले जाओ. मे आई टेक योर पेन प्लीज़? यस यू मे. क्या मैं आपकी पेन लूँ? जी आप भले लें. तो मे परमिशन के लिए, मे जो है अपना. दूसरा मे पॉसिबिलिटी के लिए होता है, इम्कान हो किसी चीज़ का, कि इट्स मे रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो. ही मे कम, हो सकता है कि वो आए. तो मैं, और फिर मैं का दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं अपना पॉसिबिलिटी के अलावा जो है वो बद्दुआ या दुआ के लिए. वो सेंटेंस शुरू ही मैं से होता है जब हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह आपको दराज उम्र दे. मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आप पे रहम करे. तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखा करो कि जब ये दुआया जुमले यूज़ करते हो ना तो मे को आगे रखा करो. अक्सर लोग कहते हैं कि गॉड मे ब्लेस यू. जब आप कह रहे हैं कि गॉड मे ब्लेस यू तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी की सूरत हाल है. ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है खुदा आप पे रहम करे, हो सकता है ना रहम करे. जिस तरीके से आप कह रहे हो कि इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो. ट्रेन मे कम, ट्रेन हो सकता है आए, हो सकता है ना आए. डॉक्टर मे कम, डॉक्टर हो सकता है आए, हो सकता है ना आए. सो गॉड मे ब्लेस यू, खुदा हो सकता है आप पे रहम करे, हो सकता है ना करे. लेकिन अगर इसको दुआ बनाना है तो मैं को आगे ले जाएं, फिर कहें कि मैं गॉड ब्लेस यू, और इस सेंटेंस को फुल स्टॉप ना करें. जब दुआ करते हैं तो इसको आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन दे. जब दुआ या कलमात होते हैं तो इसको आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन दे, फुल स्टॉप ना करें. मैं गॉड ब्लेस यू, इस सेंटेंस के आखिर में जाकर एक्सक्लेमेशन साइन दे, जो अजब की निशानी आप कहते हैं, उसको यूज़ किया करें. सो दिस वे वी यूज़ दिस. ओके, फिर शुड हम लगाते हैं, ये भी मॉडल वर्ब है जो हम नसीहत के लिए लगाते हैं. हैड बेटर लगाते हैं, आट लगाते हैं. और जब ज़रूरी ऑब्लिगेशन होती है तो हम ये मस्ट लगाते हैं, यू मस्ट कम टुडे,
मस्ट। सो वेल, फिर मॉडल वर्ब पे पहुँचेंगे, वर्ब के चैप्टर पे पहुँचेंगे तो मॉडल वर्ब को भी खोलेंगे, देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ को एक जगह पर पढ़ाकर बंद करने का कायल नहीं हूँ, ये आप थोड़ा नोट करें। मैं देखें इन चीज़ों को बार बार डिस्कस करता हूँ। मैंने अपनी जो पिछली टीचिंग एक्सपीरियंस में यही सीखा है कि ये चीज़ें जब बार बार डिस्कस होती रहती है ना, फिर वो स्टूडेंट्स के जहन में क्लियर भी हो जाती हैं और वो फिर उन पे वाजे हो जाते हैं। तो अभी जब मॉडल का वर्ब का चैप्टर आएगा तो भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस तरह के डिस्कशंस के दौरान हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करते चलेंगे। सो दे मस्ट टीच प्रॉपरली, दे must teach properly. They pronoun must, model verb, teach verb, properly adverb. Okay, now see this properly is going to qualify verb teach. Teach is a verb, it is a work, it is going to show that what action is going to take place and how this action is going to take place, वो काम कैसे हो रहा है, that's a responsibility of adverb. Adverb is going to qualify this verb teach. So they must teach properly and is conjunction. दोबारा इस दो sentences को आपस में जोड़ा है, that's a conjunction. It's going to connect these two sentences. And they again pronoun, और देखिए प्रोनाउन किसके लिए यूज़ हो रहा है, टीचर्स के लिए। अब इस ओवरऑल इस सेंटेंस में देखें कि नाउन टीचर एक मर्तबा आया है, टीचर, फिर बार बार रिपीट नहीं हुआ है टीचर्स टीचर्स टीचर्स, नो। फिर उसकी जगह पर हर टाइम क्या आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है जो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव है या उसको रिप्लेस कर रहा है। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर नाउन एक मर्तबा यूज़ हुआ है, फिर बार बार उसकी जगह पर प्रोनाउन दे यूज़ हुआ है। सो दे मस्ट टीच प्रॉपरली, दे शुड, तो ये दे कौन, ये दे जो है ना बेसिकली टीचर्स के लिए को क्वालिफाई कर रहा है। दे शुड नॉट यूज़ कॉर्पोरल पनिशमेंट। शुड फिर एक और मॉडल वर्ब आया है, ये जब हम कोई भी नसीहत करते हैं, कोई भी अथॉरिटेटिवली जब हम नसीहत करते हैं तो हम शुड लगाते हैं। नसीहतें तीन तरीके से की जाती हैं। एक, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बड़ा, कोई सुपीरियर जब अपने से जो है ना सबऑर्डिनेट या आपसे कम उम्र के जब कोई मशवरा देता है, कोई हिदायत करता है तो शुड लगाया जाता है। यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड टेक टाइम, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर स्टडीज़, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दैट्स अ शुड। अच्छा, इससे फिर हम दूसरा होता है वो थोड़ा सजेस्टिव स्टाइल होता है। जब आप मशवरा कुन अंदाज में किसी को कोई हिदायत कर रहे होते हैं तो हम हैड बेटर लगाते हैं। यू हैड बेटर कम ऑन टाइम, आपके लिए अच्छा होगा कि टाइम पे आओ। यू हैड बेटर कंसल्ट डॉक्टर, आपको रोज़ बुखार आता है, यू हैड बेटर कंसल्ट डॉक्टर, अच्छा होगा डॉक्टर को दिखाएं। इस तरीके से शुड को लगाए जो ना हम हैड बेटर लगाते हैं। उससे भी अगर लाइट सेंस में हमें कोई कहना होता है तो हम आट टू का सहारा लेते हैं, OUGHT, आट TOT। तो आठ को हम यूँ लगाते हैं कि जिस तरह देखें ना कि हम कहेंगे यार देखो हमें रोज़ देर हो जाती है ना, वो हमारा इंतज़ार करते हैं, आज उनको देर हो गई है ना तो हमें भी उनका इंतज़ार करना चाहिए ना। तो वी हैव टू वेट फॉर देम, ओके, यू नो दैट दे रियली वेट फॉर अस, टुडे दे आर लेट, वी आर टू वेट फॉर देम, वी आर टू वेट फॉर देम, हमें भी उनका इंतजार करना चाहिए। ये भी एक मशवरा है इन दिस सेंस, ओके, इन अ लाइटर सेंस वी यूज दिस टर्म आर्ट। सो शुड एंड हैड बेटर एंड आर्ट ये यूज़ होते हैं इस तरह सजेशंस में के स्टाइल में। तो यहाँ पे जो ये यूज़ हुआ है, यहाँ पे जो शुड यूज़ हुआ है वो मॉडल वर्ब है। नॉट, अच्छा नॉट आपकी नज़र में क्या है? They should not. What is not? That's interesting. आप क्या समझते हैं? What's not in this sentence? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition. What? Especially those who will be the ex-Paragon students would be familiar. I must think. Exactly, Zaid. That's nice. Ayaz, yeah, right. You are right, Ayaz. You are right, Zaid. Great. That's great. So, great. This is adverb. Not is adverb, okay? Not बता रहा है कि ये कैसे हो रहा है. Niyazeman represents negative sign. Yes, it represents negative sign, but as a word class, not is a negative adverb. ये नॉट बता रहा है कि ये देखो मैंने आप एक सिंपल लॉजिक बताया था
कि इसका काम है, एडवर्ब का बताया ना कि वो काम कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यूज जो है ना वर्ब है, वर्ब को क्या हो, ये वर्ब ना हो, नॉट यूज। तो यूज होगा कैसे होगा, नॉट होगा, ठीक है। ये इसका देखिए इनके रूल्स समझें कि ये लैंग्वेज में करते क्या हैं। अब यूज़ जो है ना एक वर्ब है, एक काम है, यूज़ होता है, अगर होता है तो वो है, यूज़ जल्दी होता है तो जल्दी भी एडवर्ब होगा, यूज़ स्लो होता है तो स्लो भी एडवर्ब होगा, यूज़ मच है तो फिर वो उस तरीके से, यूज़ नॉट है तो नॉट भी एडवर्ब है, ये नॉट एडवर्ब है। इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ये नेगेटिविटी को जाहिर करता है और ये बताता है कि ये काम नहीं हो रहा है। दिस एडवर्ब नॉट यूज कॉर्पोरियल पनिशमेंट। अब यूज वर्ब है और कॉर्पोरियल पनिशमेंट सजा है, एक नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है जो है ना, और इसको हम काउंटेबल भी समटाइम्स यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, बट ओवरऑल इज अनकाउंटेबल पनिशमेंट। एंड अनकॉर्पोरियल जो है वो से मुराद है, कॉर्पोरियल जो होती है, जो जिस्मानी सज़ा दी जाती है क्लास में, स्कूल्स में स्टूडेंट्स को, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरियल। सो कॉर्पोरियल पनिशमेंट जो है ना, जो बच्चों को सज़ा देना, दैट्स वे मीन्स अ गुड टीचर डजंट यूज कॉर्पोरियल पनिशमेंट। सो कॉर्पोरियल इज एडजेक्टिव। पनिशमेंट क्या है, वो नाउन है, पनिशमेंट नाउन है, सज़ा तो है लेकिन कैसी सज़ा, जिस्मानी सज़ा जो स्टूडेंट्स को दी जाती है, दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरियल पनिशमेंट। एडवर्ब ऑफ मैनर लतीफ़ वो होता है जो बताए कि काम कैसे हो रहा है। देखें एडवर्ब को पे चैप्टर्स पे हम इसको खोलेंगे, लेकिन एडवर्ब ऑफ एक मैनर होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि आई एम टीचिंग स्लो, ये स्लो बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है, मैनर क्या है। आई एम टीचिंग फ्रॉम पैरागन अकेडमी, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, या ही इज सिटिंग आउटसाइड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, या he came yesterday is adverb of time, adverb of manner, adverb of place, adverb of question, interrogation, adverb of negation, adverb of frequency। तो ये फिर हम डिफरेंट एडवर्ब हैं जो एडवर्ब के चैप्टर्स में आएंगे, वी विल ओपन इट लाइक दिस। ओके, सो दैट्स वेल। एंड she has been waiting since morning but she could not find her book, it was really a tough day for her। okay, तो अगर हम इसको, मैं अब आपको ये प्रैक्टिस नहीं कराता हूँ क्योंकि अभी हमने आगे चलना है, तो यहाँ पे इसी को बस हम एनालाइज कर लेते हैं कि शी इज़ अ प्रोनाउन, हैज़ बीन ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग जो है एक्शन वर्ब है, सिंस मॉर्निंग, सिंस यहाँ पे प्रीपोजिशन है, मॉर्निंग नाउन है, बट कंजक्शन है, शी प्रोनाउन है, कुड मॉडल वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, फाइंड वर्ब है, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बुक्स नाउन है, इट प्रोनाउन है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, रियली जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, इट वॉज रियली अ टफ डे। रियली जो है ना एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, टफ को कर रहा है। टफ तो था लेकिन कैसा टफ था, रियली टफ था। अब टफ क्या है, ये एडजेक्टिव है, किसके बारे में बता रहा है, डे के बारे में बता रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव की कैसे मदद कर रहा है। अब देखिए मिसाल के तौर पे आप नाउन से शुरू हो, नाउन है डे, कैसा डे है, यू से इट्स टफ डे, टफ इज एडजेक्टिव। टफ तो है, कितना टफ है, रियली टफ, रियली इज एडवर्ब। ओके, तो रियली एडवर्ब टफ एडजेक्टिव की मदद करता है, टफ एडजेक्टिव जाकर नाउन डे को क्लियर करता है। सो आर्टिकल है, क्यों आर्टिकल यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि जो डे है वो नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, वी आर यूजिंग इट फॉर दिस। सो दिस डे फॉर हर इज दिस प्रोनाउन फॉर preposition। तो इस तरीके से please do analyze these parts of speeches, word classes in your sentences. Whenever you read any passage, the important thing is that come to this point. Look, when you read any passage, okay, the very important thing is that you must practice and analyze it into pieces, okay, break into pieces, okay, just and when you break into pieces, then you come to understand that how these pieces are put together to develop a complete sense in the language. So pieces are bits or pieces. They are very important way. This is very important method to develop your understanding of a language and its component, and how these components they work together.
So once you are able to analyze them, you break them into pieces and you understand that what each piece is going to play its role or its contribution in that particular context and that particular sentence. This will give you real confidence in your language acquisition as well as in your language demonstration. Then you would be familiar with these components, and when you would use them, at least you would be quite clear that what I need here, whether I need adjective, whether I need adverb, whether I need preposition, and what preposition is appropriate there, and what should be suitable adjective to qualify a certain noun. That's really authentic way, and this is how you can move forward towards this. So since and for, जावेद, दिस इज प्रेपोजिशन है और इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं, इसको मैं प्रेपोजिशन के चैप्टर में बिल्कुल क्लियर करूँगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल बता दूँ, सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल है वो ये इस्तेमाल होता है कि जब भी कोई काम की हम शुरुआत बताते हैं, देखें ये जो टेंसेस में जब आप पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है ना वो 4 किस्म के टेंसेस हम पढ़ते हैं कि इंडेफिनेट आपको सिर्फ बताता है काम होता है, अभी हो या माजी में हुआ हो या फ्यूचर में हो तो इंडेफिनेट होता है। आई टीच, आई टॉट, आई शैल टीच। फिर कंटिन्यूस बताता है कि काम जारी है, आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग। कंटिन्यूस में काम जारी होता है। इंडेफिनेट काम बताता है कि काम होता है, कंटिन्यूस आपको बताता है काम जारी है। और फिर परफेक्ट बताता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, कि आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, I have completed my assignment, I had completed my assignment, I shall have completed my assignment। तो indefinite tense बताता है काम होता है, continuous आपको बताता है कि वो काम जारी है, perfect बताता है कि काम complete हो चुका है। लेकिन perfect continuous, और देखें अब ये बड़ी important बात है कि हमें simple continuous और perfect continuous कब यूज़ करना होता है। simple continuous हम हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हम जो है वो कोई भी काम थोड़ी देर के लिए जारी होता है ना, तब हम सिंपल कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। और मिसाल के तौर पे कोई अभी मुझसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग ऑनलाइन, यहाँ पे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगा रहा हूँ। कोई भी काम थोड़ी देर के लिए जारी होता है तो हम सिंपल कंटिन्यूस लगाते हैं, लेकिन अगर कोई किसी काम का दौरानिया ज़्यादा होता है देन वी यूज़ परफेक्ट कंटिन्यूस एंड वी यूज़ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 17 ईयर्स, कि मैं 17 साल से ये पढ़ा रहा हूँ, या आई हैव बीन टीचिंग फॉर 18 ईयर्स, आई हैव बीन लिविंग इन बदीन। जी आप कहाँ जो ना वो रहते हैं, बदीन में रहता हूँ। जी बदीन में आप कितने अरसे से रह रहे हैं। अब देखिए जब हम दौरानिया को रेफर करते हैं ना, जब उस तो ये जब लॉन्ग दौरानिया लॉन्ग पीरियड होता है तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा आप क्या कर रहे हो, आप कहते हैं कि जी आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये सिंपल कंटिन्यूस है। लेकिन मैं कहूँ कि कब से इंतज़ार कर रहे हैं, सर मैं सुबह से अपने पापा का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब देखिए सुबह, अब ये काम का दौरानिया ज़्यादा है, तो इसी तरीके से आप याद करें जब आप छोटे होते थे तो आप एप्लीकेशन लिखते थे छुट्टी की, उसमें अक्सर एक कॉमन मिस्टेक आती है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ओके, तो हैरानी होती थी कि जब वो कह रहा है कि आई एम सफरिंग, एक तरफ कह रहा है कि सिंस लास्ट नाइट और आगे सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रखा होता है कि आई एम सफरिंग सिंस लास्ट नाइट। ऐसा नहीं होगा। देखिए आई एम हम तब लगाते हैं कोई काम शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे पीरियड ज़्यादा है तो हमें लगाना चाहिए कि आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ, तो सिंस और फार का फ़र्क क्या है। तो देखें जब आप टाइम को रेफर करते हैं, वी हैव टू वे टू रेफर टू टाइम, आइदर द बिगिनिंग और द total period of time, total So when you refer to total period of a time, then we use preposition for। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, I have been teaching since 2002। So when I am saying that I have been teaching since 2002, तो ये सिर्फ बिगिनिंग बता रहा है कि ये काम कब से शुरू हुआ है, कब से, 2002 से। लेकिन जब मैं कहूँ कि I have been teaching for 18 years, तो ये बता रहा है कि उसका टोटल पीरियड। तो अगर आप टोटल पीरियड को रेफर करना चाह रहे हैं, दैट टाइम यू वुड यूज फॉर, और अगर आप शुरुआत को रेफर करना चाह रहे हैं यू वुड यूज सिंस। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2002, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 PM। ये सिंस है।
और fa I have been teaching for 18 years. I have been waiting for 4 hours. मैं 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ. So when you refer to your total period of a time, we go with the fa, but when you refer to your beginning, then we talk about the sit. So this way, you would be able to analyze that, to understand it. So here, this first session would be over. Let us move towards another session. I wanted to cover pronoun today, but I don't think that we will be able to cover noun, because if I will go in noun today, then we will be only focused on the semantics. पे हम सिर्फ सेंटिक्स में रुक जाएंगे, तो बेहतर है कि अब हमें जो है ना वो सेमेंटिक्स की तरफ जाना चाहिए. तो यहाँ पे हम सेंटिक्स के चैप्टर को वाइंड करते. ये पूरा सेंटिक्स था. देखिए यहाँ पे हम सिर्फ ग्रामेटिकल थिंग डिस्कस कर रहे थे. अब हम जब सेमेंटिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे हम वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, वर्ड्स मीनिंग, उसमें हम स्टोरीज सुनेंगे. और मैं अपने स्टूडेंट्स की सेमेंटिक्स को डेवलप करने के लिए इस तरह के टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, जिसमें स्टोरीज हैं, वीडियो क्लिप्स हैं. उसके थ्रू मैं उनकी सेमेंटिक्स को जो है ना डेवलप करता हूँ. और जब हम ये सुन रहे होंगे या जब हम इनको रीड कर रहे होंगे, तो उसके दौरान जब मैं पढ़ूंगा तो हमें फोनेटिक्स पे भी फोकस करना है, तो हमने उसके साथ साथ फोनेटिक्स पे भी फोकस करना है. तो इसी तरीके से सेमेंटिक्स, सेंटिक्स, फोनेटिक्स, इन तीनों को हम साथ लेकर इस कोर्स के दौरान चलेंगे. और यूजुअल क्लासेस के अंदर भी हम इन्हीं चीज़ को अपनी उसमें टीचिंग के दौरान इसको प्रैक्टिस करते हैं. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सेमेंटिक्स. Yes, today's reading is this false check. Please, it's your time to read.
थैंक यू वेरी मच। ओके, योर रीडिंग टाइम इज़ ओवर। जब आप रीडिंग करेंगे तो आप 3 काम करेंगे। पहली बात, आप इसको समझेंगे। दूसरी बात, आप इसके वर्ड्स को गैस करके मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बात कि आप उन वर्ड्स को नोट करें जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आते, और जब मैं फिर उनको पढ़ के क्लियर करता हूँ तो आप उसका मतलब समझें। फॉल्स और फैक्ट चेक, एक झूठा चेक। ओके, फॉल्स चेक, फैक्ट मकसद झूठा। तो चेक जो हम बैंक में देते हैं पैसे निकालने के लिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक ज़माने की बात है, देयर लिव्ड अ बिजनेसमैन। वहाँ पे एक बिजनेसमैन रहता था। Owing to various reasons, owing के साथ preposition to fix preposition है। Owing to various reason, बहुत से सबब की वजह से। Owing to जिसकी जगह पर आप ये भी लगा सकते हैं because of। अगर इसको आप सिंपल करें तो आप इसकी जगह पर because लगा दें। because of various reason। because of है, उससे और थोड़ा आप ऊपर जाएं तो हम owing to लगाते हैं। Owing to various reason he became insolvent। इंसॉल्वेंट कौन होता है? वो बंदा जो दिवालिया होता है। उर्दू में उसे दिवालिया कहते हैं, सिंधी में माण्हू चवंदा त हीअ जो कंगाल थी वियो। जॾहिं या अक्सर तौर ते पाण बिज़नेस में चवंदा आहियूं दादा हीअ बिज़नेस में टुटी वियो आहे। त जॾहिं को बिज़नेस में टुटी वेंदो आहे, उनजा पैसा ख़त्म थी वेंदा, तो उनजे लाइ अंग्रेज़ी में टर्म यूज़ कबो इंसॉल्वेंट। तो जब कोई बिज़नेस में दिवालिया हो जाता है, जब उसका बिज़नेस ख़त्म हो जाता है और उसके पैसे वगैरह ख़त्म टूट जाते हैं, तो वी यूज़ टर्म इंसॉल्वेंट। एंड हिज बिजनेस गॉट फिनिश, और इसका बिजनेस जो था ना वो ख़त्म हो गया। इंसॉल्वेंट इज एडजेक्टिव। ओके, बिजनेस इज नाउन एंड गॉट फिनिश्ड। ओके, फिनिश जो है ना वो एडजेक्टिव है, बिजनेस फिनिश हो गया। वन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज सिटिंग इन अ पार्क, एक सुबह ये पार्क में बैठा था। बीइंग क्वाइट वरीड, ये बहुत ज़्यादा परेशान था। क्वाइट वरीड, काफ़ी घबराया हुआ था। एंड अपसेट, और काफ़ी अपसेट था। There came an old man, तो वहाँ पे there came an old man, वहाँ पे एक बूढ़ा बंदा आया। and asked the reason of his nervousness, और आकर इसे पूछा कि what's the reason of his nervousness? What's the reason of his nervousness? पूछा कि इसकी परेशानी का, मायूसी का सबब क्या है। The businessman narrated the story, entire story। तो बिजनेसमैन ने अपनी पूरी कहानी नैरेट की। नैरेट करने का मतलब है सुनाना, बताना। He narrated his entire story. The old man gave him a check। तो उस बूढ़े बंदे ने, अब देखिए शुरू में मैंने कहा था ना कि यहाँ पे हमने लगाया था एन ओल्ड मैन ना। अब इस सेंटेंस में देखें कि यहाँ पे हमने लगाया था कि देयर केम एन ओल्ड मैन। ये पहली मरतबा नाउन है। ओल्ड मैन जो है ना नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है। पहली मरतबा आ रहा है तो हम यहाँ पे अ या एन लगाते हैं। चूँकि ये ओल्ड मैन है, अलिफ के साउंड से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? एन लगा रहे हैं। अब ये ओल्ड मैन का जब भी जिक्र आएगा ना तो हम इसको द लगाएंगे, क्योंकि इसको हम मखसूस करते जाएंगे। इसी तरीके से वो जो बंदा भी ऊपर हमने बैठा था कि उसका भी जब हमने बिजनेसमैन का जिक्र किया, देयर वाज अ बिजनेसमैन। ये देखें यहाँ पे अ बिजनेसमैन है। अब जब भी ये जिक्र होगा तो इसका हम रखेंगे द बिजनेसमैन। देखें ये यहाँ पे अ बिजनेसमैन था ना, अब क्योंकि इसी बिजनेसमैन का बार बार जिक्र हो रहा है मखसूस का, तो हम देखें यहाँ पे ये द लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम पहले मरतबा किसी भी नाउन, कॉमन, काउंटेबल, सिंगुलर को अ या एन, उसके बाद फिर उसको द लगाते हैं, क्योंकि जब हम उसको मखसूस कर रहे होते हैं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंटायर स्टोरी, द ओल्ड मैन गेव हिम अ चेक। अब यहाँ पे चेक पहली मरतबा आ रहा है ना, तो चेक को हम देखें इंडेफिनिट आर्टिकल लगा रहे हैं। गिव हिम चेक। ओके, चेक, इसको चेक दिया ऑफ ह्यूज अमाउंट फॉर हेल्प, बहुत ज़्यादा पैसों का एक चेक दिया। अमाउंट नाउन है ना, ह्यूज एडजेक्टिव है। ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा पैसों का चेक दिया। फॉर हेल्प, फॉर प्रेपोजिशन है, हेल्प नाउन है। ये हेल्प नाउन है, मदद के लिए। द हेल्प अगर करेंगे तो वह बन जाएगा, और खाली हेल्प को अगर आप नाउन भी यूज़ कर सकते हैं। आई नीड योर हेल्प, ये हेल्प नाउन है। प्लीज़ हेल्प मी, ये हेल्प वर्ब है। तो आप हेल्प को नाउन भी यूज़ करेंगे और ये इसको वर्ब भी यूज़ करेंगे। देखिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वर्ड जो है ना, ये कांस्टेंट नहीं रहेंगे ज़बान के अंदर। ये नाउन भी बन जाएगा, फिर वही वर्ड आपके सामने आप देखेंगे वर्ब बन जाएगा। तो अब तय हमने सेंटेंस में करना है ना कि ये कर क्या रहा है। यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है या जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। कैन आई यूज़ योर कार, यहाँ पे यूज़ को देखें, ये वर्ब है। क्या मैं आपकी कार यूज़ कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर कार, ये यूज़ वर्ब है।
अगर इसको हम नाउन के यूज़ भी करें, नो सॉरी इट इज़ इन माई यूज़, माफ़ कीजिएगा गाड़ी मेरे इस्तेमाल में है। अब ये इस्तेमाल यूज़ नाउन है, सो वी कैन यूज़ दिस यूज़ एज ए वर्ब एंड आल्सो यूज़ एज ए नाउन। एक ही सेंटेंस के अंदर यूज़ वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में वही उसका तलफ़ुज़ यूज़ बन जाता है। जब नाउन होता है तो हम इसको यूज़ प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वो नाउन बन जाता है कि कैन आई यूज़ योर कार, क्या मैं आपकी कार यूज़ कर सकता हूँ? नो आई एम अफ्रेड, इट इज़ इन माई यूज़, इट इज़ इन माई यूज़। तो इस तरीके से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इस स्किल्स को आप इम्प्रूव करें, जो मैं इतनी ये मेहनत कर रहा हूँ और बार बार इन चीज़ों को, मेरा मतलब ये है कि आप इन बारीक बीन स्किल्स को इम्प्रूव करो। सो द बिजनेसमैन became happy, वो खुश हुआ, एंड resumed his business। उसको जब इतने बड़े के चेक मिला तो वो खुश हुआ, उसने अपना बिजनेस शुरू किया। resumed his business with the remaining money, जो उसके पास पैसे थे ना, उससे उसने अपना बिजनेस शुरू किया। विदाउट गेटिंग द चेक कैश्ड, उसने चेक को कैश नहीं कराया और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे अपना बिजनेस शुरू किया। He had this idea, notion, उसके जहन में एक बात थी, that whenever he would need, जब भी इसको ज़रूरत पड़ेगी, he would cash the check, ये चेक को कैश करा लेगा। However, he didn't need to do it, इसको कभी उसकी कैश कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो इसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, इसने बिजनेस किया within a few months, और थोड़े महीनों के दरमियान। देखिए, एक होता है few, एक होता है a few, एक होता है the few। जो खाली few होता है वो फ्यू और लिटिल, इसका इस्तेमाल हमें सीखना होता है। फ्यू हम लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ और लिटिल हम लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो फ्यू जब लगता है तो उसके बाद जब आप कहते हैं कि आई हैव फ्यू रुपीज़, तो फ्यू का मतलब है कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर है। इसी तरीके से अगर आप कहें कि आई हैव लिटिल मनी, तो लिटिल का मतलब है कुछ भी नहीं, मकसद ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आई हैव अ लिटिल मनी, तो अ लिटिल का मतलब है कि थोड़े बहुत आपके पास पैसे हैं। अ लिटिल का मतलब है थोड़ा बहुत होना, लिटिल का मतलब है बिल्कुल ना होने के बराबर। फ्यू का भी मतलब है ना होने के बराबर। फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है प्लूरल के साथ, और जो लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। जिस तरह यहाँ पे फ्यू है ना, मंथ्स के साथ लगा है, देखिए मंथ्स प्लूरल है, उसके साथ हमने लगाया अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में। हिज बिजनेस डेवलप्ड, इसका बिजनेस डेवलप हुआ। थ्राइव्ड, अब थ्राइव्ड या जो है ना वो थ्राइव हुआ, डेवलप हुआ, तरक्की की। एंड गॉट एस्टैब्लिश्ड, और वो मुस्तहकम हो गया उसका बिजनेस। नाउ ये कंजक्शन है, लिंक पैदा करा। ही डिसाइडेड, इसने फैसला किया। टू रिटर्न द चेक, टू रिटर्न, अब इसने फैसला किया कि ये वापस करे। जो डिसाइड रिटर्न है ये वर्ब है। द चेक, ऊपर अ चेक था ना, अब द चेक, क्योंकि उसी चेक की बात हो रही जो बूढ़े ने इसको दिया था, तब मैं यहाँ पे द यूज़ करा। द चेक टू द ओल्ड मैन, यहाँ पे द ओल्ड मैन क्यों? क्योंकि वही बूढ़ा बंदा जिसने चेक दिया था, हम किसी दूसरे बूढ़े बंदे की बात नहीं करें। द ओल्ड मैन, ही मेट द ओल्ड मैन, ये जाकर उस बंदे से मिला। इन द सेम पार्क, इन द सेम पार्क, उसी पार्क के अंदर जाकर मिला। when he was thanking the old man, when he was thanking, जब ये उसका शुक्रिया अदा कर रहा था, the old man for his support and help, जब ये उसकी सपोर्ट और हेल्प का शुक्रिया अदा कर रहा था, there came another man to take the old man, वहाँ पे एक दूसरा बंदा आया उस बूढ़े बंदे को ले जाने के लिए। The person told the businessman, वो जो बंदा आया, that person, उसने बिजनेसमैन वाले को बताया, इस बिजनेसमैन को बताया that the old man was mad, उसने बताया कि ये जो बूढ़ा है ये जो है वो ज़हनी तौर पे जो है ना वो डिस्टर्ब है, ये पागल है, चरिया है, इंसान है। Insane or mad or mentally retarded. He's a mentally retarded. ये इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं। Therefore he had a habit. इसके लिए इस बूढ़े की आदत है, ये जो भी बंदा मिलता है उसको ये चेक देता है। He's giving checks to people. लोगों को चेक देने की इसको आदत है। The man took the old man, वो बंदा उस बूढ़े को लेकर चला गया, and went off, और चला गया, went off. took the old man and went off, उसने उस बूढ़े को लिया and went off, चला गया। The businessman was still thankful to the old man.
लेकिन ये बिजनेसमैन अभी भी उस बूढ़े का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था फॉर हिज फेक चेक, जो उसने उसको झूठा चेक दिया था, विच गेव हिम होप। उसी चेक ने उसको उम्मीद दिलाई, ट्रस्ट, दोबारा भरोसा दिलाया, एंड कॉन्फिडेंस, और उसको एतमाद दिलाया टू री एस्टैब्लिश हिज बिजनेस, कि उसने अपने बिजनेस को री एस्टैब्लिश किया। समटाइम्स, ये कंजक्शन देखें, कभी कभार, गुड पेरेंट्स, आपने देखा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ और बाप, माँ जो है ना आपके दिल की पालनहार है, वो आपके अंदर एहसास और जज्बात की पालनहार है। इसके लिए माँ आपके जज्बात ही सपोर्ट करती है। आप माँ को जाकर बताओ ना कि 2 + 2 5 होते हैं, तो माँ कहते हैं हाँ ऐसा भी होता होगा। लेकिन बाप को ऐसी गलती न कीजिएगा कि अगर ये बताओ कि 2 + 2 5 होते, तो वो कहेगा कि अरे मैंने तेरे ऊपर इतना खर्चा किया, तो ये भी पता नहीं है कि 2 + 2 4 होते हैं, तो वो आपको कुछ और सुनाएगा। लेकिन मसला ये है कि बाप जो है ना, बाप आपके दिमाग का पालनहार है। बाप आपको समाज में खड़ा होने की तरबियत करता है कि बाप को, क्योंकि बाप आपके दिमाग को संभालने का जो ना वो ज़िम्मा उठाया होता है, इसके लिए वो आपको हकीकत पसंद बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और माँ आपके दिल की पालनहार होती है और वो आपके दिलों को संभाल रही होती है। इसके लिए दोनों चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। और माँ को जब भी देखोगे ना, इस धरती की तरह होती है ना, जो बिल्कुल बर्दाश्त करती रहती है और धीमी सी प्यारी सी। लेकिन बाप सूरज की तरह होता है, जब आता है तो यस एग्जैक्टली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपनी रोब ताप के साथ और कितनी जो है ना वो अपनी तमाद के साथ वो सूरज उभरता है और आता है। तो बहरहाल अल्लाह आपके ये दोनों माँ बाप दोनों सलामत रहें, आपकी ज़मीन और आपका सूरज सलामत रहे। तो सॉरी, तो ये जो वालिदैन होते हैं, ये एक किस्म कभी कभार आपकी ज़िंदगी में एक चेक देते हैं। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा होता है, उसको जब माँ कह रही थी कि मेरा बेटा ऐसा होगा, ओह माय गॉड, ओके, वो जो जुमला होता है, आप वहाँ सोच रहे होंगे कि अब ये बेचारा क्या पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, फलां बनेगा। एक गरीब खातून अपने बच्चे के लिए ये कि दुआ मांग रही होती है, लेकिन वो उस बच्चे के दिल को एक उम्मीद देती है। सो ज़िंदगी में ये जो इस तरह के चेक होते हैं ना, कभी कभार ये भी आपको एक ज़्यादा उम्मीद देते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। ओके, सो समटाइम्स गुड पेरेंट्स, गुड टीचर्स का क्या काम होता है? मैं यही कहता हूँ कि अगर टीचर और माँ ये अगर मायूस होकर बैठ जाए ना, कसम से कौमें तबाह हो जाती हैं। भले जो भी कुछ आप इसको माने ना माने, लेकिन ये 2 लोग हैं ना, जहाँ से इंसान की तरबियत होती है, एक माँ से एक टीचर से ना, ये 2 लोग होते हैं जो लोगों को बनाते हैं। फिर आगे चल के फिर वो समाज है, उसके हर इदारे का अपना अपना काम और कंट्रीब्यूशन है, वालिदा बात है। लेकिन ये जो ना यहाँ से एक इंसान की जो ना वो की शुरुआत होती है, उस छोटे से जहन को एक खूबसूरत जो है ना वो सबब देना, ये एक अच्छे टीचर और अच्छे वालिदैन की पैदा होती है। तो ये टीचर्स एंड पीपल दे गिव यू होप। ओके, ये आपको एक जो है ना फैक्ट चेक देते हैं, स्टिल इट कैरीज मच मीनिंग इन योर लाइफ। ओके, सो डोंट इग्नोर इट एट ऑल, कभी भी इसको आप इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। इसी से जो है ना वो इस फैक्ट चेक से वो टेडी का किस्सा याद आता है। अब हम टेडी का मैंने असल में शेड्यूल में तो कुछ और रखा हुआ था, लेकिन अब बात वहाँ चली गई है, तो हम उस टेडी का किस्सा सुनेंगे। वो टेडी जो स्कूल जाता है, अब टेडी बहुत छोटा बच्चा है, उसकी माँ जो है वो, उसकी जो मिसेस थॉमसन जो उसकी टीचर है, वो हमेशा उसी टेडी को बुरा भला कहती रहती है, और जब उसके हर नेगेटिव बात वो टेडी से कनेक्ट करती है, और जब उसकी रिपोर्ट लिखती है तो रिपोर्ट में तमाम नेगेटिव चीज़ें डाल कर रख देती थी। और वो रिपोर्ट जब प्रिंसिपल के पास जाती है तो प्रिंसिपल कहती है कि आपने इसमें कोई अच्छी बात तो लिखी नहीं है। जब हम बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें कोई प्रोग्रेस होनी चाहिए जो उसके वालिदैन और बच्चे को इंस्पायर करे। लेकिन मिस थॉमसन प्रिंसिपल को कहती है कि टेडी के लिए मेरे पास कोई जो है ना वो अच्छा वर्ड नहीं है, इससे ज़्यादा मैं लिख सकूँ। और मिस थॉमसन की एक आदत होती है, जब भी क्लास में जाती है तो वो कहती है कि लव यू ऑल, लेकिन उसको पता होता है कि वो झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता था उन्होंने कभी भी टेडी से मोहब्बत नहीं की। फिर मिस थॉमसन जो प्रिंसिपल थी, उसने जो टेडी की रिपोर्ट्स मंगाई, प्रीवियस रिपोर्ट्स मंगाई, तो उसमें लिखा हुआ था कि टेडी जो है ना बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और क्लास 1-2 स्टैंडर्ड तक वो बहुत ज़बरदस्त जो है स्टूडेंट्स रहा। और फिर उसके बाद लिखा हुआ था कि इस टेडी की माँ को कैंसर हो गई है, इसके लिए माँ उसको वो अटेंशन नहीं दे पा रही, जिसके लिए ये बच्चा जो है ना आस्ता आस्ता उस माँ के अटेंशन ना होने की वजह से इसकी स्टडी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है। फिर आगे कार्ड पे लिखा हुआ था कि अभी इसकी माँ मर चुकी है और अगर हमने टेडी को फोकस ना किया तो हम टेडी को भी खो बैठेंगे। जब ये सब कुछ उसने प्रिंसिपल ने देखा, ये तमाम कार्ड्स जब मिसेस थॉमसन को भेज दिए, तो मिसेस थॉमसन ने उन तमाम कार्ड्स को पढ़ने के बाद
फिर जो है ना उसको पता चला कि रियलिटी क्या है। तो अगले दिन जब मिस थॉम्सन क्लास में गई थी तो उसने आज भी कहा था कि आई लव यू ऑल, लेकिन आज भी उसको पता था कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि जितनी मोहब्बत आज उसके दिल में टेडी के लिए थी उतनी किसी के लिए भी नहीं थी। और फिर उस दिन के बाद उस टेडी ने मिस थॉम्सन ने हर पॉजिटिव चीज़ में टेडी को कोऑपरेट करती थी, टेडी को रेफ़र करती थी, और हर अच्छी बात वो टेडी के साथ मंसूब करती थी, और वहाँ से टेडी को एक इमोशनल बैकअप, एक इमोशनल सपोर्ट मिली, और वही टेडी आगे बन के PhD डॉक्टर बना। तो दिस इज़ व्हाट इज़ अ लाइफ लाइक, एंड हाउ अ टीचर can play the role, and how we can means help these small teddies in our classroom। ऐसे बहुत से टेडीज़ जो हमारे घरों में बैठे हैं और जो हमारे स्कूल्स में क्लासरूम में होते हैं, इन टेडीज़ को संभालना, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेट्स कम एंड एंजॉय दिस लिसनिंग सेशन। Saturday will go, Sunday will go, and Monday will come, and you'll go back to the class. And like this teacher by name Mrs. Thompson entered the class for the first time. And she had this habit of starting her class by saying, "Love you all." But she knew she was lying, because she could not feel that love for one of the students in the class who was very unkept, untidy, and there was nothing in the child that drew attention from Mrs. Thompson. She was little indifferent to the child. She picked him for every negative example and ignored him for all the positive reasons. That year, she had written the progress report for the first quarter, and it was a system in the school that the headmasters have to countersign every progress report. The headmasters called for Mrs. Thompson and told Mrs. Thompson, a progress report should report some progress. It should make a parent feel my child has a future. The way you have written the progress report for Teddy, that is how he was called. The way you have written the progress report for Teddy, parents will give up on Teddy. Mrs. Thompson immediately said, there's nothing I can do. I have nothing positive to write about the child. Immediately the headmasters asked the administrative staff of the school to trace the old year progress reports of Teddy and send it across to Mrs. Thompson's class. Mrs. Thompson saw the 3rd standard progress report, and it was written, the final remarks, Teddy is the brightest child in the class. She was stunned by what she read. She saw the 4th standard progress report, and progressively all the remarks suggested that Teddy's mother was suffering from terminal cancer. She is not able to give the attention she used to give to Teddy, and it's just beginning to show up on the performance of Teddy. The 5th standard progress report read, Teddy had lost his mother, and along with that himself. He desperately needs help, otherwise we will lose this child. By then there were tears in the eyes of Mrs. Thompson. She looked at the principal and said, I know what to do. And she went back to the class. Probably it was a Monday morning. She walked into the class and again from the dais of the class looked at the class and said, love you all. But she knew she was lying. The love she was feeling for Teddy right now was far, far greater than the rest of the class. She decided that she is going to change her approach. For every positive reason, Teddy's name was called. There was no more a negative reference to the whole thing. The last day of the school came. All the children had brought some gifts for the teacher. There was only one gift which was wrapped up in an old newspaper. Somehow, the sense of a teacher, she could knew that it must be from Teddy. She opened that first. A half-used perfume bottle
and a bracelet from which a few stones had already fallen was there. The whole class laughed, knowing it was from Teddy. But without saying anything, Mrs. Thompson just took that half-used perfume bottle, sprayed it on her, wore that bracelet. With a quarter smile, it seems Teddy told, "Now you're smelling like my mother." This is the last perfume that she used before she left me. And this is what was removed from her body before she was taken into the coffin. 1 year later, end of the school, end of the year, there was a letter on Mrs. Thompson's table. "I've seen few more teachers, but you're still the best teacher I've ever seen. With love, Teddy." Every year till the end of the year, Mrs. Thompson used to get this letter from Teddy. "I've seen few more teachers, but you're the best teacher I've ever seen, Teddy." Years rolled by, they lost contact. Somewhere an agent traced Mrs. Thompson, who had retired by now, and handed over a letter. And the letter was signed Dr. Theodore, PhD. Teddy had gone on to become a PhD. And the letter read, "I've seen many more people in life. Mrs. Thompson, this is your Teddy. You're still the best teacher I've ever seen. I'm getting married. And I cannot dream of getting married without your presence." Along with that enclosed were to and fro flight tickets. Mrs. Thompson couldn't resist. She no more had the perfume bottle, but she still preserved the bracelet. She wore that and went to the church. She was trying to sit in the last row, but volunteers identified and ushered her right to the front row. And right in the front row, there was a seat with a placard written, "Mother." Theodore personally asked Mrs. Thompson to sit in the chair and whispered, "You are the closest to my mother that I've ever experienced. And whatever I am today, it's because of you, ma'am." The wedding happened, and after the wedding, Theodore introduced Mrs. Thompson to his newly wedded wife. Without her, I wouldn't be where I am today. There were tears in Theodore's eyes. It seems Mrs. Thompson told the newly wedded woman, "Without Teddy, I would have never realized a teacher must first be a mother to every student of hers, and only then a teacher." This is just my request to all of you. There is a Teddy sitting in your class. When you go back to your classroom on Monday morning, there is a Teddy in that class, and you can be that Mrs. Thompson. Please, on Monday, don't go back to the institutes as a teacher. Go back as a parent who can also be a teacher and be a turning point in the life of those children. You plus me. I believe we can build a new world. That is really important. The story of Teddy is a story of every house, it's a story of every class. May it be every class, may it be every family, we have a Teddies, and we have to look after them in each sense. Actually, thank you Latif, जो आपने कमेंट्स दिए. बेटा आई लव यू. एक और साथी के सदाकत के कमेंट्स थे. थैंक यू सदाकत. जावेद, आपके सवाल जो है वो वालिदैन और टीचर्स की तरफ के है कि दोनों नायाब हैं, दोनों का अपनी खूबसूरती है, लेकिन जितना जो आपको इंस्पायर करते हैं ना, वो वालिदैन से ज़्यादा टीचर करता है. जब आप बच्चे होते हैं तो आप जो ही आप स्कूल्स में आते हैं तो वो जो टीचर है ना, वो आपकी लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जो आप आइडियल ज़िंदगी में तय करते हैं वो अपने टीचर से करते हैं. अब जाबिर है ना, मेरे पास बैठा होता है, मैं उसको पढ़ा भी रहा होता हूँ, इवन अंग्रेज़ी में कभी मैं उसको कहता हूँ कि बेटा ये यूँ होता है, तो वो मुझे नहीं फॉलो करता. वो कहते हैं नो, मेरी मैडम ने ये कह दिया, इट्स ओके, इट डजंट केयर फॉर मी.
सो जो इंस्पायर बंदा होता है ना वो अपने टीचर से ज़्यादा होता है, शर्त ये कि टीचर। अब मसला ये है कि हमारा आलम ये है कि टीचर्स और जो ट्यूटर्स का इशू है। मैं मरी में पढ़ता था, वहाँ पे मेरा एक उस्ताद होता था मजीद साहब पठान। वो मजीद साहब हमेशा कहते थे कि यार उस्ताद को उस्ताद होना चाहिए, उस्ताद जंदीक ना हो। तो जावेद अगर उस्ताद जंदीक ना हो ना तो फिर तो ये आपको आसमानों की बुलंदी तक ले जाता है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वालिदैन आपको आसमान से ज़मीन पे जिस्म की शक्ल में लाते हैं, फिर टीचर आपको ज़मीन से आसमान की तरफ ले जाते हैं। हाँ, आपको जो जिस्म है वो आपके वालिदैन अता करते हैं, इस जिस्म को मकसद आपके असातिज़ा अता करते हैं। वालिदैन आपको दिमाग देते हैं, इस दिमाग के अंदर ख़यालात की धारा को शुरू करना ये एक टीचर का काम होता है। वालिदैन आपको हाथ ज़रूर देते हैं लेकिन हाथों का इस्तेमाल करना टीचर सिखाता है। वालिदैन आपको पाँव ज़रूर देते हैं लेकिन पाँव को मंजिलों के निशान एक उस्ताद बताता है। अब फ़ैसला मैं आपके दामन में छोड़ूंगा कि कौन आपको क्या है। हैं दोनों अजीम, दोनों का अपना मज़ा है, अपना मकाम है। आपके तमाम रिश्ते सलामत रहें, आपके असातिज़ा भी और आपके वालिदैन भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। और दोबारा आपसे मुलाकात होगी 11th सेशन में। कल नहीं परसों, हर दूसरे दिन ये क्लास होती है। अब कल नहीं परसों ये क्लास होगी 4 से लेकर 5:30 तक। तब तक अपना अपने घर वालों का सभी का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।